چودھری عارف صاحب، بہت ہی اچھے اور مدلل طریقے سے آپ نے اپنی بات کو پیش کیا۔ ایکشن کمیٹی چکسواری کے ممبران راجہ اسکر صاحب، خواجہ شعیب صاحب، خواجہ ناصر ہدایت صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بہت بہت شکریہ۔ ملک ندیم صاحب، سوشل میڈیا یوٹیوب پر جتنے بھی یہاں پر تشریف آئے، آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ قاضی رضوان صاحب، سفیان جڑ، سفر شیراز، مرزا افتخار جراب صاحب تشریف لائے، سابق صدر میڈیکل ایسوسی ایشن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ابو موسیٰ کشمیری، حاجی چودھری تاصف صاحب تشریف لائے تھے، اسی وجہ سے انہیں جانا پڑا جلدی۔ وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری ڈاکٹر شہزاد، کونسلر چودھری ماسٹر یاسین صاحب، محمد اکرم سہگل صاحب، چودھری ندیم حسین تتال سے تشریف لائے، نقاش حسین شاہ، محمد اعظم مغل یو کے سے، عثمان علی، راجہ عبدالعزیز صاحب، چودھری عابد حسین کھٹ، کنان حسین موجودہ صدر میڈیکل ایسوسی ایشن، متی اللہ جنرل سیکرٹری، لالہ رزاق صاحب تشریف لائے، اخلاق احمد نامی صاحب، چودھری اکرم نمبردار صاحب، نمبردار ماسٹر غفار صاحب تشریف فرما ہیں، چودھری حفیظ صاحب، راجہ رئیس صاحب، آپ تمام احباب کا شکریہ جو آپ تشریف لائے۔ جنید یونس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب، حاجی ادریس صاحب، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مقرر کی طرف۔ آزاد پریس کلب چکسواری کے موجودہ صدر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صحافت کی دنیا میں ایک عظیم نام، ہر وقت متحرک ایکٹیو صحافی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر 5 سے 10 منٹ بعد ان کی ایک خبر ضرور ہوتی ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب عابد حسین چودھری، صدر آزاد پریس کلب چکسواری، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کا اعلان کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان خصوصی عزت مآب جناب چودھری ظفر انور صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر، باتیں تو بہت ساری کرنی تھی لیکن چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اور وقت اپنی دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، مختصر میں کوشش کروں گا کہ چند باتوں پہ، چند جو ہمارے یہاں پہ مت بنے ہوئے ہیں، زبان زد عام میں کئی محاورے بنے ہوئے ہیں، ان پر میں بات کروں گا۔ ایک تو عموماً یہ کہا جاتا ہے، یہاں پر بات بھی چلی کہ صحافت غیر جانبدارانہ ہوتی ہے۔ میرا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ صحافت جانبدارانہ ہوتی ہے۔ صحافی ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چور کو بھی موقع دیں کہ وہ چوری کرتا رہے اور آپ جو ہے کسی گواہ کو بھی بلا لیں کہ وہ اس کی چوری کے آگے گواہی دے۔ آپ کو اپنی خبر سے یا اپنے ہاتھ سے اس چور کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک وقت میں دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہیں، آپ کو ایک سائڈ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صحافت کو پیغمبرانہ شعبہ مانتے ہیں، اس کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت سے ہمارے علاقے میں، ہمارے پاکستان ملک میں اور باقی جگہوں پہ بھی سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، تو جیسے ہی موبائل سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے، گورنمنٹ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ورنہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے تھے، 7 مہینے میں تو کام ہی نہیں ہوتا تھا، وہ نہ تو ملزم پکڑا جاتا تھا اور نہ ہی اس میں عام بندے کی رسائی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس شعبے میں آیا، آساتی طور پر ہم نے صحافت کو جوائن کیا، سچی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جب دیکھا میں نے، اور مین مقصد بھی یہی تھا، شاید آپ کو آج میں آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 98 میں ہم نے، میں نے اور اکرم شہید نے اکٹھے ٹریننگ حاصل کی۔ اکرم شہید کے نام سے میرے خیال میں یہاں پہ موجود ہر شخص واقف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں قبول کر لیا اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد جب میں شعبہ صحافت میں آیا تو میں نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جو ہے شعبے کے لیے چنا تھا کہ میں قلم کے ذریعے جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے لکھتا تھا۔ اور یقین کیجیے اپنی ساتھ کے مطابق جب ہم نے بشارت شہید پریس کلب کی بنیاد رکھی تو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے لکھا، لیکن درمیان میں مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم تو ان لوگوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں جو ہم سے بہت دور ہیں، جن پر ایک
ताकतवर जो है वो फौजी ताकत है दुनिया की, जो आप उसे माने ना माने, ये एक अलग बात है, हम उसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन इंडिया एक बड़ी पावर भी है और साथ में इकॉनमी पावर भी है, वो उस पर मुसल्लत है। हम तो यहाँ पर लोगों को उनकी हुकूमत नहीं दिलवा सकते। यहाँ पे जो उनके साथ थानों में, पटवारियों के दफ्तर में या बाकी दफातर में अशर होता है, उसके लिए हमें लिखना चाहिए। और यकीन कीजिए उसके खिलाफ लिखा, जैसे कि तिब्बा शाह साहब ने फरमाया, शाह साहब मेरे साथ भी हैं, उन्होंने मुझे सहाफत की अलग से सिखाई है कि इस रास्ते पे चलते हुए मुझे बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उसमें बेशुमार फैक्टर थे कि चूँकि उसमें चले मैं बात नहीं करता, बहुत बेशुमार फैक्टर मौजूद है अब भी, लेकिन अल्लाह का फजल है और अल्लाह ही की ज़ात है कि जिसने मुझे इस रास्ते पे चलाया हुआ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने हक और सद का साथ देता रहूँ। एक और हमारे यहाँ पे अमूमन होती है कि हम ये कहते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है तो उसे भौंकने दे, आप निकल जाइए यहाँ से। मैं इस चीज को तस्लीम नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप कुत्ते का ऐसा बंदोबस्त करें कि बाकी शरीफ लोग आराम से गुजर जाए वहां से, कुत्ते को छोड़ ना दें। और कुत्तों को बांधना चाहिए। दिक्कत बात यह है कि उनको जब तक आप बांधेंगे तो माशरे के बाकी लोग जो उस सुकून का सांस नहीं ले सकेंगे। अब मैं एक बात, जैसे आरिफ चौधरी साहब बहुत अच्छी, मैं इनका फैन भी हूँ। यकीन करें कि इन्होंने मंगला डैम ऑपरेशन के हवाले से बात की। मुझे याद है कि रोजनामा जनाब में मैंने इनकी खबर, जो मेरी सबसे बड़ी खबर लगी थी, वो 8 कॉलम बैक पेज पे लगी थी, जब ये मज़ामत कर रहे थे कि पानी जो है वो न छाया जाए। मैं आप इस पानी के जो डैम बन गया है उस हवाले से मैं आप उस पर हम रोक नहीं सके। इन्होंने बड़ी तहरीक चलाई, नहीं रोक सके। लेकिन मैं एक पहलू पे बात करना चाहूँगा कि बाकी छोड़े, सिर्फ मैं चिकसवाड़ी की बात करूँगा कि मंगला ऑपरेशन के सिले में आपको एक न्यू टाउन दिया गया था। यहाँ पे शायद आबद साहब मौजूद है। पिछले दिनों उनका एक प्लाट का केस था जो मेरे सामने आया, तो मैंने कोशिश की कि इस टीम की खबर लगाने के लिए सबसे पहले मैं इस नक्शे को देखूं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो नक्शा मंगवाया और यकीन कीजिए मैं आप सबको कहता हूँ, बल्कि आपने शायद देखा होगा कि जब पार्क में 30 रुपए फीस रखी गई तो मैंने उस पर मजामत की। मैंने कहा आप 30 रुपए को रो रहे हैं, आपको तो अरबों रुपए आपके डूब रहे हैं। नक्शा देखा है तो उसमें बाकी चीजें थोड़े, 2 हमारे हाई स्कूल थे, जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड हाई स्कूल है उसको आप देख लें, उसकी मेरे ख्याल में 52,000 स्क्वायर फुट जो है उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, हाई स्कूल बॉयज जो है। इसी तरह जो गर्ल्स है उसकी भी इससे थोड़ी सी कम है। उसके अलावा एक जो बिल्डिंग है वो वोकेशनल सेंटर की बनी हुई है, वो इमारतें तबाह हो रही हैं, यकीन करें आप वो भी शुरू कर रहे हैं। और एक और मैं आपको निशानदेही करता चलूं कि उस दिन में गया तो जो स्कूल की बिल्डिंग में अस्पताल बनाया जा रहा है वो सिर्फ 3 पोर्शन पे बनाया जा रहा है। 36,000 स्क्वायर फुट जो रकबा वो कवर किया जा रहा है, बाकी छोड़ दिया गया। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट में क्यों उसको छोड़ रहे हैं। हमारे हुक्मरानों की जो तरजीह थी वो देखें कि वोकेशनल सेंटर की इमारत जो है उसको बनाया नहीं गया। 2009 या 10 में वो शुरू हुई, अभी तक नामुकम्मल है। लेकिन उनकी जरूरत रेस्ट और साथ जो 2015 में शुरू हुआ और 2-3 साल में मुकम्मल हो गया, उसमें देख लें आपको बेकार पड़ा हुआ था। चले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कासिम मजीद साहब को, जब उनकी वजारत आई तो उन्होंने पैसा जनरेट करने के लिए उसको ठेके पे दे दिया। इसकी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने अच्छा किया। लेकिन साथ ही में MPHA के अरबाब इख्तियार से और जनाब मेहमान खुसूसी चौधरी जफर अनवर साहब, आपसे गुजारिश करूंगा चूंकि आप अपोजिशन में हैं तो जो मैं चीजें आपको नोट करवा रहा हूँ इस पे आप आवाज बुलंद कीजिएगा कि हमारे इस न्यू टाउन में 80 से 85 कनाल रकबा जो है वो कमर्शियल शॉप्स के लिए, 80 से 85 कनाल, मैं एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँगा। 2 जो है प्राइवेट स्कूल्स के लिए रकबे मौजूद हैं और 10-10 कनाल तक मौजूद है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 11.5 कनाल का रकबा मौजूद है। उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री के लिए 7.5 कनाल रकबा मौजूद है। हेलीपैड के लिए वो हमारी जरूरत नहीं है, वो रकबा मौजूद है। आपको सिर्फ एक कब्रिस्तान दिया गया है, जबकि यहाँ पे 3 कब्रिस्तान है। एक कब्रिस्तान जो बना हुआ है इसका 23 कनाल रकबा है, एक का 27 कनाल रकबा और दूसरे का मेंशन नहीं है, लेकिन वो स्टेडियम की बैक साइड पे है, बहुत बड़ा रकबा है। आपको सिर्फ छोटा सा पार्क देके जो वो तनख्वाह दिया गया है। दूसरे लफ्जों में आपका जो इस पार्क के नीचे रकबा है सफारी पार्क 450 कनाल रकबा है आपका। इसके अलावा 2 पार्क और हैं, एक बच्चियों के हाई स्कूल के साथ है और एक जो है हमारा स्टेडियम की तरफ जाए तो वहाँ पे वो भी 27 कनाल का रकबा है। वहाँ पे BHU की 2 जो है वो आपकी इमारतें मौजूद है, यानी प्लाट्स मौजूद है। मेरा मुतालबा ये है कि इन जितने भी प्लाट्स हैं जो अवामी
मफाद के लिए रखे गए हैं, चाहे वो कमर्शियल प्लाट है या वो प्राइवेट स्कूलों के रकबे हैं या प्राइवेट अस्पताल के लिए रकबा है, उसकी निशानदेही की जाए। अगर उसे लीज पे देना तो उसे लीज पर दिया जाए, और अगर उसे नीलाम करना है यानी उसकी बोली लगा के उसे फरोख्त करना तो फरोख्त करके तो MDHA के उस पे प्लेटफॉर्म पे वो पैसे आए ताकि वहाँ से अवामी फलाह बहबूद करने को काम हो सके। इस पे मजीद भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बाद में भी डिस्कस करेंगे कि क्योंकि इस वक्त जो है हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। प्रेस फाउंडेशन के वाले से मेरे दोस्त इमरान बिलाल साहब ने बात की, एक अफसोस रहेगा कि रियासत और हुकूमत का जो चौथा स्टून है साखत को चौथा स्टून गिना जाता है, लेकिन वो ये स्टून है जिसकी कभी देखभाल नहीं की गई। ना तो सरकारी सतह पर साथियों को कोई तनख्वाह वगैरह दी जाती है। प्रेस फाउंडेशन एक इदारा बना हुआ है जिसके जितने फंड थे वो आज तक मैंने ना मीरपुर में इस्तेमाल होते देखे हैं। जैसे इमरान बिलाल साहब ने फरमाया कि हमारे एक साथी 3, 4 साल 5 साल कोमे की हालत में रहे, लेकिन उनको 10 रुपये भी प्रेस फाउंडेशन से नहीं मिले, जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है शोबे को दी थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा चौधरी साहब कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ही सब्र दिया है, बड़ा ही हौसला दिया है। मैंने आपको ऑब्जर्व करता रहता हूँ और यकीनन मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़े काम के लिए मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई बड़ा काम लेगा। तो आप जब इफ्तार में आए तो इन शोबों पर खास तौर पर शोबा साबित जो चौथा हमारा स्कूल है उसका आप लोग ख्याल कीजिएगा और साथियों की फलाह बहबूद के लिए कोई कदम उठाइएगा। वस्सलाम। एक बार तमाम मैं जो हमारे यहाँ पे नज़र मेहमान तशरीफ लाए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ।